अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म।
through SCADA. ठीक है? In SCADA you will be updating all the things, all the production in real time. So we will be getting all the data of production in real time from that. ठीक है? Did you get it, sir? Doctor, my question is not clear. My answer is not clear. My simple and specific question is, should we put the data on real-time basis, that means 40 or 50, 80 hours, or can I put it in one shot after completion of production? Please clear. No. See, real-time means that whenever you are making at every 5 minutes you are doing that thing. That is real-time. And doing the entry after data, that is not real-time. And you have to enter the shift or enter the details after the production means after the casting. You are not you will not be entering everything after the completion or after when you need the IC. उसका तब नहीं करना है. You have to पूरा टाइम नहीं लग जाएगा in एंडिंग every shift. हर 8 घंटे काम करना है. And that is not the real time. Real time means here doing the entry प्रोसेस कंटिन्यू कास्टिंग हुआ एंट्री करो प्रोसेस गया एंट्री करो. And my next question is it feasible for my चाप गिरेगा supervisor लगा. level with the mobile, smart mobile, or they will have to put laptop on production and ambience? Is it visible for mobile? No, see, in mobile it is visible. It will open in the mobile also, but the view will not be exactly same, है ना? And as you know that you will be entering a huge data over there. Because you have the 300, 300, 400 sleepers in one go or one shift, it will not be beneficial or easier for you in the when you are doing the entries from mobile. It will be advisable if you do through system. Okay. Okay, guys. My turn is over. You please carry on. Okay. Thank you. Sir, one thing please. Sir, do you want me? Yeah. My question is that in case of turnout production, usually we used to, as per Deborah, we used to unit of production as running meter, the turnout production. Okay. For isolated production, not set turnout production, I am talking about partial production, which is being called as partial isolated turnout production. What is the provision for that? As because my current currency is going on, that order isolated production which is to be taken care of in running meter. Please suggest. Sir, we have option. यहाँ पे आप देखेंगे, sir, hello. So for the turnout sleepers, like I have told you that you will be having a module for mapping of sleepers and a mold, है ना? So every bench will be declared which type of drawing it is, which type of sleeper it is, and automatically we have an option that it will be considering whenever you will be declaring that bench, it will be taking what is the running meter of that particular sleeper type or drawing number, and automatically it will be calculated by the system. What we used to nomenclature is that RFD, but you put it as RFD. It is some make it RFD. See, it is only in the development phase only. ठीक है? We will change in RFD. ठीक है? Because right now it is only middle and sleeper. We are focusing on that. So that's why we are not focusing. We will change it to RFD. Thank you. Thank you. सर ये नॉन-लिनियर में थोड़ा पीछे आए मोड में तो बताइए कैसे सर नॉन पार्शियल लिनियर ये जैसे लॉन्ग लाइन का है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वंस यू सेलेक्ट द लॉन्ग लाइन प्रोडक्शन यूनिट आप सेलेक्ट कीजिए. जस्ट लाइन मार्क डेट कास्टिंग बैच नंबर 102 हमने लिया. देन इसका ये जैसे ही आपने लॉन्ग लाइन सेलेक्ट किया इट विल रिफ्लेक्ट हियर लॉन्ग लाइन गैंग एंट्री. अर्लियर इट वाज बैच एंट्री. जैसा आप स्टेटमेंट में कर रहे थे इट वाज बैच एंट्री एंड सिमिलरली हियर लॉन्ग लाइन गैंग एंट्री. सो ये द सेम ऑप्शन जैसा हमारा स्टेटमेंट में था बैच का, आप उसको रेंज में कर सकते हैं. यू कैन ऐड इन अ सिंगल रो. जैसा आप चाहे उस चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं. बस
process will be similar for straight line as well as for long line. And the coverage will be there. अभी जो हमारा करंट सिस्टम है अभी 2 ड्राइव के लिए बना हुआ है वेस्टर्न पोस्टिंग और 2 को मैक्सिम ये अभी आपके यहाँ जो प्रोडक्शन होगा वो आप ये 2 ड्राइव के लिए आप बिजली देते हैं जैसे जैसे हमारा पूरा सिस्टम डेवलप हो जाएगा बाकी ड्राइव नंबर भी इसमें आ जाएंगे और आप उसको भी कर पाओ देन विल हैव वन प्रोसेशन ओके अभी जो आपको क्लियर हो गया मतलब कि how the views are assigned to you मतलब एंट्री कौन करेगा करना है प्रोडक्शन डिक्लेरेशन प्रोडक्शन का काम नहीं करेगा अभी जैसे सावधानी हो गया उसके हम बाद लोगों का क्लैरिटी नहीं आईसी पोर्टल में जितने का आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखाता हूं पर फिर सोचो जब छुट्टी में जाएगा तो कैसा काम होता है स्लीपर फेल होता है हम लोगों का जिम्मेदारी ये भी हम लोगों का जिम्मेदारी वो जैसे ही हमारा आई ओपन टोटल ओपन करेंगे तो उनको ये सब डाटा दिखेंगे कार्ड दिखेंगे ये जो कार्ड्स हैं ये प्रोसेस आई जो हमारे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ उनके कार्ड्स हैं ये जो बना है ये कार्ड्स पूरा बेस्ड ऑन जो हमारा रेलवे बोर्ड ने हमको इशू किया पीआईओ उसके बेस पे ये कार्ड्स बने हैं उनको जो वन मोड चेक करना है ये चेक करना ये डिटेलिंग हो जाएगा वो अपना करेंगे इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन चेक करेंगे आपका वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स और जो हमारा प्रॉपर्टी आई है वो हमारा गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग करेंगे आपको मैनेज इंस्पेक्शन करेंगे सब चीज इसमें आपको कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो बैच है क्लियर होने के बाद ऑटोमेटिकली आप जो कॉल लगाएंगे वो यहाँ पे वो बैच होने लगेगा कैसे बैच होता है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आप सबको से टीम असाइंड है किसी पर्टिकुलर मैटर को जैसे कॉलेज में जाएंगे जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसे वो आप अपना डैशबोर्ड में कॉल अरेंज में ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये डिटेल मिलेगी कि जो नंबर इस न्यूज़ सेल के एग्रीगेशन कॉल लगाने वाले हैं कॉल डेट क्या रहेगा क्वांटिटी ऑर्डर में क्या किया आपको पहले कितना ऑफर कर चुके हैं कितना ऑफर के लिए कितना पास हुआ है कितना पेंडिंग में है और फिर आपको जो बैचेस वहाँ आपके जो आईसीएस करने के बाद है बैचेस मैनेज होने लगेंगे आप सपोज हो सकता है कि ये सपोज इस बैच में जैसे आपको दिखा रहा 1604 में 24 टास्क हुए थे और 0605 में 32 टास्क हुए थे आप एट ए टाइम तो पूरा भी आप ऑफर कर सकते हैं और हो सकता है कि इसमें से सिलेक्ट करके आपको ऑफर करना है एट ए टाइम पॉसिबल में भी ऐसा होता है कि एक बैच में 200-300 स्लीपर तो 100 स्लीपर देने के बाकी कुछ जो बैलेंस हो रहेगा वो कैसे हम करेंगे जैसे एट ए टाइम आपको पूरा ऑफर करना है तो ये पूरा आपको एक बार में ऑफर कर सकते हैं अगर आपको उसको सिलेक्ट करना है ये ऑप्शन देता है जैसे इसमें 24 टास्क करेंगे हमें पूरा उसको ऑफर करना है तो ये सिलेक्ट करना है आपको ये करके होगा नहीं और अगर आपको सपोज मान लीजिए कि ये स्लीपर को ऑफर करना है प्लीज मैंने यूज किया दो पर्टिकुलर स्लीपर को कंप्लीट कर पाएंगे कॉल ठीक है सर तो अजय सिंह paddlegroup.com है Actually, I was not integrated in this private limited. I had two very specific questions. One is that for every batch, is it necessary that it should be linked to some PO? Because what happens according to railway demand, there is emergency at some place. So हमारे तो कई बार ये होता है कि तो स्लीपर रखे को हम क्या बोलते हैं हम सब बोल देते हैं कि अभी हमें यहाँ नीचे ये बड़ा कैंसिल होगा. So what will happen in that case? If it there is a particular batch linked with some particular PO. Second point is that if not all the factories are in metropolitan areas, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो ऐसे गाँव में where there is no internet as on date. What will happen to the SCADA or in those factories? ये पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रखो तो पहले क्या क्या है तो स्लीपर या बैच नंबर किसी भी स्पेसिफिक केस से लिंक नहीं करते ठीक है आपके यहाँ पे मिलिट्री बने हो दिस इज ओनली द केस व्हेन यू रिक्वायर आईसी ठीक है उस केस में जब आप पढ़े तब तो आपको किसी केस से लिंक करना पड़ेगा हां तब करेंगे ना एक पूरा इतनी बेसिक बात है आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया 15-20 दिन जो आप ऑटोगेरी में इतना था वो क्लियर मकान का एक्सप्लेनेशन हो गया जब आपको आईसी चाहिए तब आप ये लिंक कर दो शुरुआत में नहीं करना ठीक है
दूसरा क्वेश्चन है कि आपका इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट वाला का क्वेश्चन तो डाटा है प्लस डाटा है, हम कर रहे हैं, हम भी है करना है, पुश करना है डेटा, तो वो तो मैंडेट है, तो आपको उसको करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात है यहाँ पर राष्ट्रीय इंटरनेट प्रोवाइडर यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ है वो जगह यूज करें और वो जो आपके गवर्नमेंट का आज काटा का वीडियो एक्सेस तो दिया होगा ना, लेकिन आपको तो मैंडेट नहीं है, उसको कैसे दिया? लेकिन फिर कई बार जब नेट आ जाता है या प्रॉपर वो बिट पे जाते हैं तो चल जाता है, कई बार वो ब्रेक होता है। हेलो हाँ भाई वो ये हिट किया है भाई ये बोलो उसमें भी क्या होता है कि आपका ऐसा नहीं कनेक्शन हेलो ब्रेक हो रहा है ना, सो वी हैव अ पाइपलाइन क्या तो फॉर एवरी ट्रांसफर एवरी डेटा और HIK स्मॉल ठीक है, उसके लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह रहेंगी, तो वो आपके एंड पे रहेगा, आपको लिख करवाना है, वो आपकी हर एक्नॉलेजमेंट के जब आपका डेटा हो गया, ठीक है, वो जब ठीक चलने लगी मिनट आने के बाद डेटा, क्योंकि अगर आपका कनेक्शन फिर से देंगे किसी वजह से, तो यू हैव टू कीप दैट डेटा इन पाइपलाइन, जब भी वो कनेक्शन स्टार्ट मतलब फ्लो होगी फिर तक चला जाएगा। तो वो मेरे को जो मेरा ये कल दिखाई मैंने चलाई आधे घंटा बैठो दियो जब तक तो मतलब एक जीबी नहीं भरी ये पाटिल के साथ ये जो रेलवे का एरिया है ना इसका HDMI केबल होगी ऊपर से चालू है वो HDMI केबल में लगा मैं यहां पे हां मनी तो आपके पास ऑप्शन है ना ऑप्शन है बढ़िया मैं फिर इसमें लगा जियो को जियो का बॉक्स है एक DVR एक DVR एक जियो का बॉक्स है तो DVR और जियो के बॉक्स के केबल एक जो इनके पास वो है फ्रेंड HDMI का उनमें लगाने के और एक क्या नाम है LED से क्या नाम है एक्सटेंड लगाने मतलब कि एक LED से जियो का बॉक्स चलाना है क्या चलाना दो पोर्ट बनाए तो आपने देखिए आपका अवेलेबल रहेगा दोबारा ठीक इसके लिए आप 24 स्लीपर बनाया तो कुछ 16 दिखा रहा है और अपना लेकिन आपका जो बैलेंस 8 स्लीपर है वो आपका या क्लियरली ऑफर होगा अभी इसमें आपको जितना भी ऑफर करेंगे ना जो बचा हुआ वो क्वांटिटी दिखेगी वो सारे स्लीपर दिखेंगे ठीक है नमस्कार हेलो हाँ जी सर बड़ी तो आप सबमिट फॉर्म कर सकते हैं अभी आपको सुना बोलो सर आज आज बोल दो मेरी बोल रही हूँ पहले बोलती आज ठीक normally whatever ठीक when we take the video it is mentioned that ना मेरे को डाल है ऑटोमेटिक साइड में है ना updated we have to follow that so after inclusion of this software so what हाँ फोन का फोन आया में बड़ी जरूरत number one point is can we stop filling all the manual entries which we are doing at our end because otherwise we have to take yes sir manual entries also and also sir अपन का फोन आ रहा entries which now we have to in your system number one दे गया यार एक्सेप्ट करे थे amendment in STR it is applicable from छोड़ the दे next तो week. छोड़ दो तो So now we are doing this बिलोंग करे तो बात in करता between. So whether this will be applicable for the all लेकिन 3 दिन से बात ना हो रही है कल फोन आया तो बता दो मेरे से फोन our cost will increase. We have to depute people to do all these entries and all that stuff. So what will happen to आज the है cost ना implication? आज First thing is that manual entries जो आप करेंगे इसमें ठीक है मैं आज गया आपकी manual entries engine general production requirement production declaration है ठीक है and that is taking only I think 5 मिनट या 10 मिनट से आपको नहीं सर manual entries जो अभी आप कर रहे हैं अपने प्लान स्टेप एक्शन में ठीक है मैं समझ गया आपकी बात ठीक है आपकी जो declaration आप कर रहे हो production declaration देना है ठीक है apart from that जो मतलब सिस्टम रहेगा वैसे आया कि एक सेकंड की बात है जो आपका उससे उसको आप ठीक है सर वो जो अभी आप डिटेल है ना सर आप उसी को अपलोड कर देते हैं नहीं नहीं तो दोनों
आईबीएस मतलब आपका सिस्टम चल रहा है उसमें करते रहेंगे और साथ में साथी में भी मैनुअली की बात करें मैनुअल डेली कमा यार 3 दिन हो गए इसमें क्या है सर अब मैं ना इसमें क्या है एसकेआर में पूरे फॉर्म मतलब 3 दिन हो गया ना अपने को फॉर्म भर के रखने पड़ते हैं देयर आर अबाउट 22 रजिस्टर्स so 22 formats we have already filled now मतलब I am not able to understand are we supposed to fill those formats or we और now ये क्लियर है हम इसमें ये कर सकते हैं कि आप तरह से अभी स्टेटस ये है कि आपको प्लान डिक्लेरेशन करना है विजिट वर्क एंड जॉब ठीक है तो डिसाइडेड फिर तो यार हमारा ये अमेंडमेंट आना चाहिए सर अरे तो कंप्लीट कर सकते हैं वो जो वो हम ये बताएंगे कि आपको सारे को रजिस्टर में भेजो आपको लग रहा है कि तो आज बट मैं कब बात ही करता रहा हूं कि अभी करंट में आपको प्लान डिक्लेरेशन करना है वैसे वर्क एंड जॉब डिक्लेरेशन विजिट लेकिन ये किसी और अथॉरिटी ने बोला है कि आपको डेटा फिल करना है मैनुअली फिल करना है ठीक है नहीं तो क्या हम चालू करने के लिए जो उनसे बोलो वही काम है तो हमारे लिए जो बहुत काम हो जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा शुरू के लिए ज्यादा आसान काम कर हो रहा है कि अगर आप एक ट्रांजिशन के लिए रहता है पहले हम उसको प्रूव करके दिखाएं कि हम चले जाएं फिर हम बोल सकते हैं उनको ये काम करेगा सारा चीज इसमें आ रही है तो ये मैनुअल से अल्टीमेटली क्या हम ये डॉक्यूमेंटेशन और ये जो पेपर वर्क सारे सही को हटा दें सो इसका फिर आखिरी वर्डेशन ये होगा कि सपोर्ट ये होगा थोड़ा सा जब चलेगा आगे प्रूव हो जाएंगी चीजें तो हम जो जो चीजें नहीं इसको धीरे धीरे इससे रिलेटेड मैनुअल की रेटिंग हो ही जाएगी रिपोर्ट ठीक है और इसको डायरेक्ट जबरदस्त को ले तो आप ये क्वेश्चन बाद में हम लोग कर सकते हैं कि ये चीज नेसेसरी है बाद में जो मैनुअली फिलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड वी कैन यूज दिस सिस्टम ओनली टू जनरेट सिमिलर रिपोर्ट्स ठीक है ऑलमोस्ट आपका 500 हो गया है सर एज ऑफ नाउ तो सर हमारे पास खाली दो तीन चीजें हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पीओ जो आपका असाइन हो गया वेदर इट इज रिफ्लेक्टिंग और नॉट इफ नॉट वी कैन सिंक्रोनाइज इट फ्रॉम सिंक्रोनाइज पीओ बटन आपको प्लान डिक्लेरेशन करना दैट इज वन टाइम एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन डिक्लेरेशन दिस इज द शिफ्ट बाय एक्टिविटी वंस योर शिफ्ट विल बी एंडेड जैसे आप डिक्लेयर करेंगे देन वो साइकिल विल बी स्टार्टेड बाय और वो कंप्लीट होते जाएगा एंड जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी फिलअप होते जाएगा वी आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट कार्ड्स एज वेल हम लोग और डिफरेंट कार्ड्स पे वर्क कर रहे हैं जैसे अगर साहब ने बताया 22 फॉर्मेट्स है तो वी ट्राई टू अवॉइड हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे जैसे हमने एग्जाम में किया तो व्हाट आर द आईटी की जो हमारा इंस्पेक्शन के टेस्ट है जो उनके रिकॉर्ड है और थिंग्स आर being monitored and being recorded there only or who automatically match you with the which is in printable form आपको print करिए that जो formats दिए हुए हैं वेरिएबल है उस फॉर्मेट से पूरे डाटा किलो के आ जाते हैं और इंस्ट्रक्शन टेस्ट प्लान हो गया जो आपका एक्सप्रेशन सब ऐसी वो याद के लिए किया है तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग इसके लिए आपका पेपर कम होगा ये बात कम होगी beneficial. So sir, these are the activities. Anything else, sir? The questions and suggestions are welcome, sir. सर टीम बोली है एनी ना बोली
अगर सर मान लीजिए कोई एंट्री करते करते कुछ नंबर गलत लिख दिया तो बाद में उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद हम देखा जाए नहीं मेरे को दो नंबर गलत हो गया तो उसको ऐड कर सकते हैं बच्चे गलत हो गया उसके बाद हमारा वो मल्टीपल गलत ना हो जाए ताकि वो मिस्टेक्स ना हो ठीक है मिस्टेक होगा वो बताएगा और नहीं कर दिए एक मतलब आप शॉप देखिए ओके मैं भी जाके तो उनको लॉक करना पड़ेगा आपको हमेशा ऊपर मान लो काफी काज करता है इसमें स्पेस को तो एक अलग अलग मुझे ध्यान दे गोपाल भाई ऐसे बोलते हैं पिंक बता देंगे
ये एनवीआर को ऐड करते हैं, एनवीआर को ऐड करते हैं, एनवीआर को ऐड नहीं है, अंदर करने हैं। ये एनवीआर है, ये इंटरनेट पे ही है, हाँ ऑनलाइन होता है ये जो यूएस हाँ भी बता दो यार उसमें 90 डेज मेंशन किया था, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सिस्टम। अभी प्रो वैलिडिटी कम हो या तो आईसी वैलिडिटी ऐसा है तो प्रॉब्लम नहीं हो जाते सिस्टम। आईसी वैलिडिटी हां डाउन के लिए जैसे अभी आईसी दिया था क्या एनवीआर हो रहा है, ये एनवीआर चल रहा है बड़ा ये तो 10 डेज मेंशन किया था वैलिडिटी की। उसमें वीवो कंपेयर किया वैलिडिटी वीवो वैलिडिटी मेंशन किया तो प्रॉब्लम नहीं है। और इसी वैलिडिटी मेंशन किया तो उसमें उसी टाइम पे पेपर नहीं जाएगी उसमें। और ये राइट्स का जो वर्ड है ना उसके हिसाब से आपको 90 राइट्स और रेलवे बोर्ड का ये लेटर है 90 डेज का आपको आईसी रजिस्टर करना है। आपको बाकी और रिकॉर्ड और 90 डेज लेवल नहीं है सर। यार ये 90 डेज में बाय चेंज नहीं होगा जी सर, तो क्या कर सकते, क्या करेंगे? क्योंकि आजकल हर प्लांटों में तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि स्टॉक पड़ा हुआ है, कहीं 1 लाख पड़ा हुआ है, कहीं जगह 80,000 पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है और वो समय से डिस्पैच हो नहीं पा रहा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अभी क्या प्रैक्टिस है, रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस क्या है? तो अभी तो क्या कहते हैं हमको आईसी मिल जाती थी, जब भी जाता था, जब रिक्वायरमेंट आता तो वहाँ से निकाल के हम डिस्पैच करते थे। सर अभी राइट्स का रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस जो है अगर कोई आईसी 90 डेज के बाद आप भी यूज नहीं कर पाए तो उसका रीवैलिडेशन होता है, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा राइट्स में और उसको फिर जो तो ज़्यादा कम हो जाते हैं सर, जब ये मैं आपको वैलिडिटी किया तो नहीं सर, वीवो कब तक के हो अभी तक का इसी वैलिडिटी मेंशन किया तो प्रॉब्लम नहीं सर। और कुछ भी 2 साल तक चलते हैं तो 2 साल वैलिडिटी कर सकते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा था ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर तो वो एज इट इज कभी अलग नहीं होगा कि वो समथिंग एल्स के उसमें कुछ चेंज हो तो वो अलग फोरम में बात होगी। ठीक है, इसका लॉगिन बता दीजिए कैसे पहुंचना है। हां तो आप राइट्स के साथ ही कर सकते हैं, जस्ट शेयर करनी है इसके नाम शेयर करें। क्या बोला स्टॉप करें स्टॉप शेयर। नितिन राजपूत सर बैटर पे है ऑलरेडी चल रहा है डॉट राइट्स कीवर्ड्स आती है और ये हम लोग क्लस्टर में जो भी सेलेक्ट करा दें, ठीक है। भिन्न राइट्स के साथ बाकी आपका ये आईडी क्या है? vendor dot rights QA साथ ये भी सिपर बना है। हाँ बीएस इंजीनियरिंग नल्लापुरी कौन सा कॉलेज है? और आईआईटी का आईडी कोलोन की बात करें, ठीक है। कोलोन जैसे खुदा है उसमें फीड करना चालू करते हैं, फीड करना है इससे आप एक तो डाटा फीड करिएगा और आगे भी आप लिख के रखिएगा, हम लोग रेगुलर मिलेंगे, इतनी करेंगे ये सिपर 30 डे पे
कौन सी डेट से डालना शुरू करें सर, मतलब आज के प्रोडक्शन से? ठीक है, आज का जनवरी ब्रॉड गेज पहले प्लांट प्रोफाइल डिक्लेरेशन होगा, फिर प्रोडक्शन डिक्लेरेशन, जैसे जैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्लांट का प्रोफाइल ব্রড গেজ তো আমাদের পুরোনো বুঝে যেটা এইভাবে থাকে ওই যে বিজিটাই পুরো বিজি তো বানাচ্ছে ব্রড গেজ আলাদা এটা সেটটা জানি एजिंग আর বিজিতে তোমার এইরকম একটু এইরকম করে এইরকম এজিং টাইপের আর এটা তো এইরকম এটা ওয়াইড হবে এইরকম একটু ইয়াটা स्लोप থাকলে 1/20 রেঞ্জ 1/20 এইভাবে কাট লেন্থ ওভালিটি 1/12 স্লোপটার জন্যই চাকাগুলো এরকম ভিতর থেকে ভাসে থাকে হ্যাঁ চাকাটাও তো টিল্টিং করা থাকে সেই চাকাটা চাকাটা এক কোনিং সাইডে করা থাকে ইয়ে থাকে এক সাইডটা ক্লিন থাকে কোনিং হ্যাঁ কোনিং বলা হয় এইরকম মানে ওটা পুরোপুরি ইয়ে না, কনিক্যাল থাকে কারণ এক সাইডে ঘুরলে যাতে না উল্টে যায় পুরো কনিক্যাল শেপ নয় এটা হচ্ছে হালকা ট্রাঙ্কেটেড কোন চাকাটা আর রেলটাও একটু এরকম ইয়ে করা থাকে The recording has stopped. তারপর আবার দেখবে তুমি চাকার ভিতর দিক দিয়ে কিছু থাকে না লেভেল থাকে সামনের দিক পিছন দিকে একটু জাস্ট বিট টাইপের থাকে হুম হুম ওই শেপটা ভালো কিভাবে পুরো ভরটা রেডি দিতে মিলে পড়ছে ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে যাবে না। ওইটাই তো আমি বলছি মানে অনেক এক্সিডেন্ট হয়ে যাবে ওটা আলাদা ব্যাপার নাহলেও পুরো ভরটা এত স্পিডে যাচ্ছে তো তারপর এমনি দাম হচ্ছে আমি এদিকে উঠে এদিকে করে যাচ্ছি মাথা কোথায় ये ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास এইটা নিয়ে চললো আজকে তো আমার কাজই হবে না अभी इससे पहले जो मैं कर रहा था ये सब গ্রিন ডাইমেনশনে খুব প্রবলেম আসছে আমাকে ডেকে দেখাচ্ছিল এই ছেলেটা কি নাম জানো টুপি মাথায় গ্রিন ডাইমেনশনে থাকে তুমি যার কথা বলছিলে আমার কাছে যেখানে আসতে বারণ করলে ডিআরএম করবে সেটা বলছিল না ডিআরএমে যে ছেলেটাকে বলছিল না যে আসতে বারণ করছিল আমাকে ডিআরএমে আসার দরকার নেই না ডাকলে যাবে না বিনয় বিনয় বলছে প্রবলেম আসছে ওই দেখালো আমাকে ডেকে প্রচুর আউটার গেজ রেল সিট সব টাইট আছে আর টাইট বিশাল টাইট তাই কি বলবো আইএসআইটির প্রবলেম এসছে যে আবার নতুন করে জয়েন করতে হবে ট্রেনিং নাকি হলো দ্য মিটিং হ্যাজ বিন এন্ডেড বাই হোস্ট হয়ে গেল শেষ স্যার শেষ